Bright Future Academy. Today we are going to discuss Mendel's laws of inheritance. Mendel proposed laws of inheritance to express the transmission of characteristics or traits from one generation to another and the mechanism of genetics. So we are going to discuss in detail why Mendel proposed laws of inheritance. So do subscribe, like and share the videos and give your feedback in the comment section below. Before discussing the Mendel's laws of inheritance, you must have to know that who was Gregor Mendel. Gregor Mendel was a monk priest in Austria. He developed the fundamental principles of genetics. Genetics means the study of genes and inheritance. Inheritance means the transmission of characteristics from one generation to the other. And Mendel proposed that there are special factors in organisms which control the expression of traits and their transmission to next generations. These special factors were eventually termed genes. Somehow we can say that Mendel proposed these eventually termed genes are given the concept of genetics, because genes are those factors that contains all the genetic and hereditary information in our body. So genes expresses the phenotype of a trait in organisms. So Mendel performed a lot of experiment to explain laws of inheritance and how genetics and inheritance transmit from one generation to the other. इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं, लाइक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाई मेंडल सेलेक्टेड pea plant for experiments. Mendel selected pea plant Pisum sativum. The scientific name of pea plant is Pisum sativum. To carry out a large number of experiments, in his writings he gave reasons for this selection. Mendel proposed some features that an organism or an individual must have that have to be crossed. If the individual is an organism or a plant body, it should contain these features. Number 1, there should be a number of different traits that can be studied easily. In an organism or in a plant body, there should be a various traits that can be studied so that we can easily explore or determine the mechanism of genetics and inheritance. Number 2, the organism should have contrasting traits. Contrasting traits means opposing traits. For example, for the trait of height, there should be only two very different phenotypes. Phenotypes is the expression of genes or trait in the form of trait or characteristics in an organism body. Like if an individual have brown hair color genes in his body, then his hair will be of brown colors. It means genes expresses its traits in the form of brown hair color phenotype. In case of height, there should be two contrasting or opposing traits like tallness and dwarfness. Height या तो tall हो सकती है या short हो सकती है. The organism, if it is a plant, should be self-fertilizing, but cross-fertilization should also be possible. In biology, we used two terminologies, self-fertilization and cross-fertilization. Self-fertilization is the process in which union of male and female gametes of the same individual of the same species. Fertilization is the union of male and female gametes. In self-fertilization, both male and female gametes of the same individual of the same species. But in case of cross-fertilization, union of male and female gamete of the different individual of the same species. So Mendel proposed that if it is a plant body, there should be self-fertilizing and cross-fertilization. By cross-fertilization, there is more chances to produce new characteristics or new traits in a plant body that must prove fruitful and beneficial for the plant body. Like variation of generations, variation of traits, production of new traits, production of new characteristics. Number 4, the organism should have a short but fast life cycle. So that was the reason that Mendel selected pea plant for his experiment, because pea plant contained all these features in it. Mendel used 28,000 pea plants to perform his experiment, and as a result he proposed Mendel's law of segregation
and law of independent assortment. Now firstly we discuss Mendel's law of segregation. What is Mendel's law of segregation? Segregation means to segregate, to separate, अलग अलग कर देना किसी चीज़ को। इसकी डेफिनेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसका कंप्लीट प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड हाउ मेंडल परफॉर्म्ड इट. Then after understanding the complete concept of Mendel's law of segregation, we will able to define it very well. Here's an important board short question is monohybrid cross. Mono means one and monohybrid cross mean fertilization or union of male or female gametes. So monohybrid cross is a cross in which only one trait is studied at a time. Like अगर आप किसी प्लांट बॉडी का क्रॉस करवा रहे हैं तो उसमें आप एक क्रॉस में एक टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी कर सकते हैं. That is monohybrid cross. Like as shown in the diagram, here's a number of traits like opposing traits are present that Mendel proposed in his features. First one is seed shape. Seed shape या तो round होगी या wrinkle होगी. तो round and wrinkle are opposing traits of seed shape. सीड कलर या तो येलो हो सकता है या ग्रीन होगा. फ्लावर कलर पर्पल और वाइट. पोड शेप फ्लैट और कंस्ट्रिक्टेड. पोड कलर ग्रीन और येलो. फ्लावर पोजीशन एक्सियल मीन्स वर्टिकल और टर्मिनल. टर्मिनल मीन्स बेंड टू अ डायरेक्शन. स्टेम लेंथ लॉन्ग और शॉर्ट. So all these characteristics pea plant have. So Mendel selected pea plant for its experiment, and in monohybrid crossed from all these traits we studied a single trait in a single cross at a single time. So Mendel crossed a true breeding round seeded plant. True breeding round seeded plant means that particular plant have all seeds rounded with a true breeding wrinkle seeded plant. मेंडल ने एक क्रॉस करवाया राउंड सीड का रिंकल सीड्स के साथ. सो उस क्रॉस के रिजल्ट में सीड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वर राउंड. तो नेक्स्ट जनरेशन के जितने भी सीड्स आए वो राउंड थे. मेंडल डिक्लेयर्ड द ट्रेट राउंड सीड्स एज डोमिनेंट. मेंडल ने डिक्लेयर किया कि जितने भी राउंड सीड्स हैं ये डोमिनेंट हैं वाइल रिंकल सीड्स एज रिसेसिव. क्योंकि इस केस में राउंड सीड्स या राउंड ट्रेट डोमिनेंट थी और उसने रिंकल ट्रेट को रिसेसिव कर दिया. जब ऐसे क्रॉस के नतीजे में या फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो फिनोटाइप इंडिविजुअल में शो हो जाती है उसे डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, और जो शो नहीं हो पाती या जिसके असर को छुपा लिया जाता है उसे रिसेसिव कहा जाता है. लाइक इस केस में राउंड ट्रेट शो हुई है, इसका मतलब राउंड सीड्स या राउंड ट्रेट डोमिनेंट है, और रिंकल सीड्स या रिंकल ट्रेट शो नहीं हुई है तो रिंकल ट्रेट यहाँ पे रिसेसिव है. The following year, इसी साल मेंडल planted these plants and allowed the new plants to self-fertilize. मेंडल ने इन्हीं प्लांट्स को चूज़ किया और इन्हें सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, मतलब इनका आपस में ही क्रॉस करवाया ऑफ द सेम इंडिविजुअल ऑफ द सेम प्लांट बॉडी. As shown in the diagram, first one parental generation, मेंडल selected राउंड एंड रिंकल्ड सीड बिकॉज मेंडल ने राउंड सीड्स का रिंकल्ड सीड्स के साथ क्रॉस करवाया. फिर पेरेंटल जनरेशन से जो फर्स्ट जनरेशन आई F1 जनरेशन, उसमें जितने सीड्स थे वो राउंड आए, क्योंकि राउंड ट्रेट यहाँ पे डोमिनेंट है और रिंकल ट्रेट यहाँ पे रिसेसिव होने की वजह से अपनी फिनोटाइप को शो नहीं कर पाई है. फिर मेंडल ने F1 जनरेशन का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, F1 का क्रॉस F1 के साथ ही, मतलब सेम इंडिविजुअल का क्रॉस सेम इंडिविजुअल या प्लांट बॉडी के साथ. तो F1 जनरेशन में जितने सीड्स थे वो राउंड थे, तो मेंडल ने राउंड सीड्स का राउंड सीड्स के साथ ही क्रॉस करवाया. एज अ रिजल्ट ही गॉट 3:1, 3 राउंड सीड and 1 wrinkled seeded plants. The parental generation is denoted as P1 generation. पेरेंटल जनरेशन को P1 जनरेशन से शो करेंगे. पेरेंटल जनरेशन वो जनरेशन है जिसको आपने फर्स्टली यूज़ किया टू क्रॉस और टू फर्टिलाइज. द ऑफस्प्रिंग
ऑफ P1 जनरेशन और F1 जनरेशन फर्स्ट फेलिलियल। फिर उससे जो पहली जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसे F1 जनरेशन बोलेंगे, फर्स्ट फेलिलियल जनरेशन बोलेंगे। द क्रॉस इन F1 जनरेशन, फिर उसी F1 का जब आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, उसको सेल्फ क्रॉस करवाया F1 का क्रॉस F1 के साथ ही, तो F2 जनरेशन मतलब अगली जनरेशन प्रोड्यूस हुई, दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस हुई, जिसे सेकेंड फेलिलियल F2 जनरेशन लिखेंगे। As shown in the diagram, when F2 generation produced, there is 3:1, 3% round seeded plants and 1% wrinkle seeded plants। अब होना तो ऐसे चाहिए कि F1 जनरेशन में जितने सीड्स थे वो तमाम राउंड थे, और F2 में जितने सीड्स आने चाहिए वो तमाम भी राउंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट हैं कि 3% राउंड है और 1% रिंकल्ड है। इसकी एक वजह यह है कि पेरेंटल जनरेशन में हमने दो तरह के सीड्स यूज़ किए थे, राउंड एंड रिंकल। उसके रिज़ल्ट में F1 जनरेशन में राउंड सीड्स डोमिनेंट होने की वजह से शो हो गए और रिंकल सीड्स रिसेसिव थे, लेकिन F2 जनरेशन में रिंकल सीड्स ने अपनी फिनोटाइप को शो किया। इस वजह से 3% राउंड सीड आए और 1% रिंकल सीड आए। नो डाउट के राउंड सीड्स डोमिनेंट थे, और F1 की जब हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो दोनों ही राउंड सीडेड प्लांट्स थे, बट यहाँ पे रिंकल ट्रेट रिसेसिव रेट के तौर पर मौजूद है, जिसने अपनी फिनोटाइप यहाँ पे 1% शो की F2 जनरेशन में। इसलिए 3% राउंड सीडेड प्लांट्स एंड 1% रिंकल सीडेड प्लांट्स शो हुए। ये हमने एक क्लास में एक ही ट्रेट को डिस्कस किया है। हमने अभी सीड शेप को डिस्कस किया है कि या तो वो राउंड हो सकती है या रिंकल हो सकती है। सिमिलरली व्हेन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स वर क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स। अब अगर आप किसी और ट्रेट का क्रॉस करवाना चाहते हैं, लाइक अगर आप हाइट का क्रॉस करवाना चाह रहे हैं, आप टॉल प्लांट्स को शॉर्ट प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाएंगे। ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 वर टॉल प्लांट्स, तो जितने भी F1 जनरेशन में जितने प्लांट्स आएंगे वो टॉल होंगे, क्योंकि टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और शॉर्टनेस रिसेसिव है। सेम प्रोसीजर ऐसे है पेरेंटल जनरेशन में। यहाँ राउंड एंड रिंकल, चूँकि ये सीड शेप थी, इसकी जगह हम लिखेंगे टॉल एंड शॉर्ट। तो जब उसका क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन में जितने प्लांट्स आएंगे ऑल टॉल प्लांट्स। फिर F1 का आप F1 के साथ सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। इसमें आप टॉल प्लांट्स का क्रॉस टॉल प्लांट्स के साथ ही करवाएंगे। देन F2 जनरेशन में जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें रेशो आपको मिलेगी 3:1, मतलब 3% आपके पास टॉल सीडेड प्लांट्स आएंगे और 1% आपके साथ शॉर्ट प्लांट्स आएंगे। 3:1 के आने की वजह सेम वही है कि टॉल प्लांट्स डोमिनेंट थे और शॉर्ट प्लांट्स रिसेसिव थे, लेकिन 1% उन्होंने F2 जनरेशन में अपनी फिनोटाइप शो की। एज शोन इन द डायग्राम, पेरेंटल जनरेशन राउंड एंड रिंकल्ड। पेरेंटल जनरेशन का आपने क्रॉस करवाया राउंड और रिंकल के साथ। पेरेंटल जनरेशन में गैमीट के पास कंप्लीट जीन पेयर था, लाइक कैपिटल R, ये शो करेगा राउंड सीडेड प्लांट्स को। इसका क्रॉस आपने रिंकल सीडेड प्लांट के साथ करवाया, जिसे हम स्मॉल आर से शो करते हैं, क्योंकि कैपिटल R राउंड को शो कर रहा है और राउंड करेक्टर डोमिनेंट है, और स्मॉल r रिंकल प्लांट्स को शो कर रहा है और रिंकल ट्रेट रिसेसिव है, इसलिए इसको कैपिटल R और स्मॉल r से शो करेंगे। देन गैमीट फॉर्मेशन में जीन पेयर सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए, और हर गैमीट के पास एक जीन आया पेरेंटल जनरेशन में से। लाइक राउंड सीडेड प्लांट में से कैपिटल R में से एक जीन आएगा गैमीट के पास, सिंगल कैपिटल R, और रिसेसिव रिंकल्ड गैमीट के पास एक जीन आया स्मॉल r रिंकल सीड्स वाला। सो ये गैमीट्स जब आपस में यूनाइट करेंगे तो F1 जनरेशन कौन सी आएगी, कैपिटल R स्मॉल r, लेकिन तमाम सीड्स राउंडेड होंगे, क्योंकि कैपिटल R यहाँ पे डोमिनेंसी शो कर रहा है राउंड सीडेड प्लांट्स की। इस वजह से जितने भी सीड हैं वो तमाम राउंड सीडेड प्लांट्स होंगे, और स्मॉल r यहाँ पे रिसेसिव है।
F1 की जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे F1 का F1 के साथ, मतलब राउंड सीडेड प्लांट्स का क्रॉस राउंड सीडेड प्लांट्स के साथ ही, तो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, मतलब F1 का क्रॉस F1 के साथ, तो इससे जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे उसमें भी जीन्स पेयर सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा, क्योंकि जीन्स पेयर्स सेग्रीगेट हो गए हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में अलग अलग क्रॉस करेंगे F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। F2 जनरेशन में ये क्रॉस इस तरह से होगा, दिस कैपिटल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल आर एंड देन कैपिटल आर मल्टीप्लाई विद स्मॉल आर। तो इससे हम रेशो फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कितने परसेंट राउंड सीडेड प्लांट्स आएंगे और कितने परसेंट रिंकल सीडेड प्लांट्स आ सकते हैं। कैपिटल आर मल्टीप्लाई टू कैपिटल आर, कैपिटल आर, देन कैपिटल आर मल्टीप्लाई विद स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल आर मल्टीप्लाई टू कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा, अगर ऐसा है कि कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, तो कैपिटल आर हमेशा पहले लिखेंगे और स्मॉल आर बाद में लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल आर राउंड सीड को शो कर रहा है और राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट है, और स्मॉल आर रिंकल सीड्स को शो करता है तो वो रिसेसिव है। स्मॉल आर मल्टीप्लाई विद स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो इसमें हम रेशो इस तरह से फाइंड करेंगे कि पहले क्रॉस में दोनों ही कैपिटल आर हैं, मतलब ये राउंड सीडेड प्लांट है, दोनों ही आर डोमिनेंट है, दोनों ही राउंड हैं, तो राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट है। दूसरे क्रॉस में कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर मौजूद है, मतलब कि ये राउंड सीड को शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे डोमिनेंसी शो करेगा, इसका मतलब कि ये सीड भी राउंडेड है। थर्ड क्रॉस में कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर डोमिनेंसी शो करेगा और तमाम सीड्स राउंडेड होंगे। फोर्थ क्रॉस में स्मॉल आर, यहाँ पे दोनों रिसेसिव हैं, मतलब रिंकल्ड प्लांट्स को शो करे हैं, तो ये अपना रिंकल्ड प्लांट्स ही कैरेक्टर शो करेंगे। सो इस तरह से हमारे पास रेशो आती है 75% टू 25% या 3:1, मतलब 3% राउंड सीडेड प्लांट्स हैं एंड 1% रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स हैं, क्योंकि राउंड सीडेड या राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट है और रिंकल्ड सीड रिसेसिव ट्रेट है। सो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। सेग्रीगेशन बोलते हैं टू सेग्रीगेट, टू सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द जीन्स और एलील्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट, कि जब गैमीट्स बन रहे होते हैं, गैमीट्स क्या है? गैमीट्स आर दोज मेल एंड फीमेल सेल्स विच हैव टू यूनाइट टू फॉर्म फर्टिलाइजेशन। द जीन्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। जीन्स पेयर्स सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एंड ईच गैमीट रिसीव्स वन जीन फ्रॉम द पेयर, और हर गैमीट के पास एक एक पेयर आता है। एज शोन इन द डायग्राम, in this case during gamete formation both these genes pairs separate and one gamete receives only one gene, not a gene pair. When the gametes of male and female parents unite, the resulting offspring again gets the genes in pair, and this process is repeating and continuing. As shown in the diagram, after fertilization of gametes, F1 generation is produced and it contains a pair of genes. These conclusions were called the law of segregation, क्योंकि इसमें जीन्स सेग्रीगेट कर जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. सो होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली एंड easily. It's an important board long question and you must have to draw its diagram and its cross chart in your paper. ये वाली डायग्राम्स आपने पेपर में नहीं बनानी है, बाकी जो टेबल हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन है ये टेबल आप पेपर में ज़रूर बनाएंगे और आपने इन डायग्राम्स के साथ ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. So don't forget to subscribe, like and share the videos and give your feedback in the comment section below. Till then, stay tuned. Thanks for watching.